Hello children, welcome to my English tutorials. Today we are going to read poem 5 from Flamingo book class 12 and the name of the poem is A Roadside Stand. Its poet is Robert Frost. Let's read about the poet. Robert Frost, 1874 to 1963, is a highly acclaimed American poet of the 20th century. Robert Frost wrote about characters, people, and landscapes. His poems are concerned with human tragedies and fears, his reaction to the complexities of life, and his ultimate acceptance of his burdens. Stopping by the woods on a snowy evening, birches, mending walls are a few of his well known poems. In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. So, my dear children, we see that Robert Frost was an American poet. He is highly regarded for realistic depictions of rural life and his command on American colloquial speech. His work shows his deep concern for the rural people and rural life. Frost is a popular and often quoted poet. He was also honored frequently during his lifetime and he received 4 Pulitzer Prizes for his poetry. In poem Roadside Stand, Frost expresses his deep and kind feelings for the poor people of villages and he contrasts the lives of poor with that of rich who do not even bother to look at them. So we can clearly see the deep and kind feelings of Robert Frost for the poor people, for the village people, and as we see in the title of the poem, A Roadside Stand, clearly, Robert Frost is talking about a roadside stand, a small shop which the village people are having at the edge of the road, and they are waiting for the city people to come and to earn some money by selling their goodies, by selling some fruits and vegetables, whatever they are having. So, हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइम के अंदर उन गरीब लोगों की बात कर रहे हैं जो सड़क के किनारे अपनी छोटी-छोटी शॉप्स खोले हुए हैं या फिर वो ठेली पर या टोकरी में फल और सब्जियां रखे हुए हैं और वो इस वेट में है, इस इंतजार में है कि शहर से कुछ लोग आएंगे। जैसा कि हाईवेज पर हम देखते हैं गाड़ियां आती जाती रहती हैं और कई बार आपने भी ट्रैवल करते हुए देखा होगा कि किस तरह से गांव के लोग जो किसान लोग हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो सड़क के किनारे पर अपनी छोटी-छोटी टोकरी या फिर अपनी कोई उन्होंने स्टॉल्स लगाए होते हैं और वहाँ पर वो बैठे रहते हैं और यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इस पोएम में बताने वाले हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी उम्मीद भरी आँखें जो हैं उन रोड्स पर लगाए रहते हैं पूरा दिन कि कोई आएगा और उनसे वो चीज़ें खरीदेगा। तो देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में हमें क्या बताते हैं। लेट्स रीड द पोएम। The little old house was out with a little new shed. In front, at the edge of the road, where the traffic sped. तो पहले हम इन 2 लाइनों में ही देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बता रहे हैं हमें। In these lines, he says that the little old house was out with a little new shed. कि एक छोटा सा घर था और एक उस पर नई सी एक छत लगी थी, न्यू शेड, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, जो कि किनारे पर, सड़क के किनारे पर बिल्कुल सामने ही बना हुआ है, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और जहां पर सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहती हैं। स्पेड मीन्स द व्हीकल्स यूज टू गो एट अ हाई स्पीड देयर। A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a doll of bread. Now he says that a roadside stand, वो जो roadside stand है, जो उन्होंने अपना वहां पर एक ठिकाना बनाया हुआ है, जो एक शॉप बनाई है, जहाँ स्टॉल लगाया हुआ है, तो वो बहुत ही पथेटिक कंडीशन में है, मिजरेबल कंडीशन में है। Pled means here he pleads. Here the roadside stand, it is making a request. यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज किया है रोड साइड स्टैंड pathetically pled. Here we see that Robert Frost has used the literary device personification. He has personified the roadside stand here. वो roadside stand जो वहां पर आने जाने वाले लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है। किस चीज की रिक्वेस्ट करता है कि उसके पास कुछ सब्जियां हैं, वो लोग आएं और उनसे खरीद लें। कुछ फल हैं या फिर कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। It would not be fair to say for a doll of bread.
और हाँ, ये कहना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा कि वो वहाँ पर उनसे कोई रोटी माँग रहा है या अपने लिए कुछ खाने के लिए माँग रहा है। नहीं, वो भीख नहीं माँग रहा है। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, जो गरीब लोग सड़क के किनारे अपनी चीज़ें बेचने के लिए खड़े हैं, बस वो तो इतना चाहते हैं कि जो गाड़ियाँ वहाँ से गुज़र रही हैं, उसमें बैठे हुए शहर के जो लोग हैं, वो उनके पास आएँ, उनसे कुछ सामान खरीदें और बदले में पैसे दें। तो हाँ, ये जो रोड साइड स्टैंड लेकर जो लोग हैं, these पुअर पीपल, they are not asking for any money, they are not asking for bread, but they are asking for the people to come to them to buy some things from them and to give money to them. So let's see आगे वो क्या कहते हैं, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. यहाँ पर वो ये बताते हैं कि ये जो गाँव के लोग हैं, ये किस चीज़ के इंतज़ार में हैं? फॉर सम ऑफ द मनी, बस इन्हें कुछ पैसे चाहिए। द कैश, वो कैश, हुज़ फ्लो सपोर्ट्स, जिसकी फ्लो जो है, जो पैसे का आना-जाना सपोर्ट करता है, मदद करता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज़, ये जो पैसा है, ये इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फ्लावर ऑफ सिटीज़ कहा है। किसे फ्लावर ऑफ सिटीज़ कहा है? मनी को, कैश को। क्यों फ्लावर ऑफ सिटीज़ है? क्योंकि ये कैश जो है, ये सिटीज़ को प्रोग्रेस की ओर लेकर जाता है। बस उसी प्रोग्रेस के इंतज़ार में ये गाँव के लोग हैं। और ये कहते हैं द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेम, ताकि वो लोग टूट ना जाएँ, मुरझा ना जाएँ, इसीलिए उन्हें उस पैसे का इंतज़ार है जो शहरी लोगों के पास है और ये वेट कर रहे हैं उन लोगों के आने का। अब आगे देखते हैं द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। अब यहाँ पर पॉइंट क्या कहते हैं, द पॉलिश ट्रैफिक उन्होंने किसे कहा है? सबसे पहले द शाइनिंग व्हीकल्स, द शाइनिंग कार्स। और पॉलिश्ड कौन हो सकते हैं? द सिटी पीपल हु आर एजुकेटेड, हु आर सोफिस्टिकेटेड, पास्ट विद अ माइंड अहेड। तो ये जो शहरी लोग हैं, शहरी गाड़ियां हैं, जो चमकती हुई गाड़ियां हैं, ये वहां से गुजर जाती हैं विद अ माइंड अहेड। माइंड अहेड मीन्स विद अ फोकस्ड माइंड, जिनका जो फोकस है वो सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन की ओर है, अपनी मंजिल की ओर है कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें कुछ ध्यान नहीं है कि सड़क के किनारे कुछ गरीब लोग बैठे हैं या कुछ फल सब्जी बेचने वाले बैठे हैं। बस वो चले जा रहे हैं सीधे अपनी मंजिल की ओर। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और कभी अगर उन्हें रुकना भी पड़ जाता है या साइड और की ओर देखना पड़ जाता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो बस डिस्टर्ब हो जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। आगे की इन दो लाइनों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें उस जगह पर रुकना पड़ जाता है जहां पर जो जगह है वो थोड़ी सी खराब है और उसके ऊपर वहाँ पर कुछ साइन बोर्ड्स लगे हैं। आप भी देखते होंगे, कभी आप ट्रैवल करते हैं, कभी हाईवेज़ पे जाते हैं, तो जहाँ पर वो शॉप्स बनी रहती हैं या कुछ लोग अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं, वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगे रहते हैं, जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, नॉर्थ की ओर जाता है रास्ता या साउथ की ओर। तो वहाँ पर जो बोर्ड के ऊपर ये लेटर्स प्रिंट किए हुए हैं, ये एन या एस जो है, उनका जो पेंट है वो फेड हो गया है, तो इस चीज़ से भी उन्हें डिस्टर्बेंस हो जाती है या वो रॉन्गली स्पेल किए होते हैं। Offered for sale wild berries in wooden carts और crook-necked golden squash with silver warts। और यहाँ पर वो लोग क्या देखते हैं कि सड़क के किनारे जो लोग ये अपने वुडन कार्ट्स लेकर खड़े हैं। वुडन कार्ट्स क्या होते हैं? वुडन कंटेनर्स, लकड़ी के कंटेनर्स जिसमें उन्होंने वाइल्ड बेरीज, कोई जंगली बेर वगैरह रखे हुए हैं। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश। गोल्डन स्क्वैश इज अ टाइप ऑफ वेजिटेबल। इसके जो ऊपर का सिरा होता है वो थोड़ा मुड़ा होता है, तो इट इज कॉल्ड क्रूक नेक्ड एंड विद सिल्वर क्वार्ट्स। और इसके जो गोल्डन स्क्वैश एक जो सब्जी होती है, इसके ऊपर जो है सिल्वर कलर के डॉट्स होते हैं, जिसको कि पोएट इज सेइंग लाइक क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स। तो इन चीजों को वो बेच रहे हैं वहां पर सड़क के किनारे। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जैसे एक सुंदर माउंटेन सीन है, माउंटेन का सीन है, तो वहां पर बहुत सुंदरता फैली है, बहुत खूबसूरत लगता है। अब जो खूबसूरती है वो उस पर्वत के अंदर ही है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट अगली लाइन में हमें बताते हैं, यू हैव द मनी, कि इन शहरी लोगों के पास पैसे हैं। और वो शहरी लोगों को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, बट इफ यू वांट टू बी मीन, और हाँ, अगर तुम देना नहीं चाहते हो,
अगर तुम अपनी जेब से पैसे नहीं निकालना चाहते हो, यू हैव द मनी, तो अपने पैसे अपने पास ही रखो। बट इफ यू वांट टू बी मीन, और हाँ, तुम अगर कंजूस हो, तुम निकालना नहीं चाहते हो, व्हाई कीप योर मनी, तो तुम ये पैसे जेब में लाते ही क्यों हो? दिस क्रॉसली, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। ही इज नॉट हैप्पी विद द एटीट्यूड ऑफ द सिटी पीपल हेयर, एंड ही सेज टू द पीपल to keep their money in their pockets and to go from there, to go along. और वो यहाँ पर शहर के लोगों से क्या कहते हैं कि अपने पैसे अपनी पॉकेट में रखें और यहाँ से चले जाएं। The hurt to the scenery would not be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. अब इन लाइन्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें कहते हैं, वो बताते हैं हमें, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। ये जो हाईवे के किनारे या सड़क के किनारे जो जगह खराब है या साइन बोर्ड फेडेड है, जिनका पेंट खराब हो गया है, अगर वो लोग उनके बारे में कुछ बुरा बोलते भी हैं, जो सिटी पीपल हैं, उन चीज़ों के बारे में अगर कुछ बुरा बोलते भी हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उससे कंप्लेंट है, किस चीज़ से? ट्रस्टिंग सॉरो, वो ट्रस्ट जो गाँव के लोगों को शहर के लोगों में है। अब शहर के लोगों के लिए गाँव के जो किसान हैं, जो उनके परिवार के लोग जो सड़क के किनारे पर शॉप खोले बैठे हैं, वो कहीं न कहीं उन्हें विश्वास है कि शहर के लोग आएँगे और उनसे उनकी चीज़ें खरीदेंगे और हो सकता है उनसे 1-2 बात भी कर लें, उनका दुःख-दर्द जान लें। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दुःख है कि नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो लोग उन वहाँ की खराब जगह को देखकर कुछ बुरा बोलते हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इस बात से कोई दुःख नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दुःख है इस चीज़ से, लोगों के एटीट्यूड से, जो गरीब लोगों के पास ना तो आते हैं, ना ही उनसे उनके दुःख-दर्द बाँटते हैं। वो दुःख-दर्द जो गाँव के लोग कह भी नहीं पाते हैं। व्हाट इज़ अनसेड, जिनका ज़िक्र नहीं हुआ है कभी, जिनके बारे में उन्होंने कभी शहर के लोगों से बात नहीं की है। तो इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस चीज़ से दुखी हैं। लेट्स रीड, आगे वो क्या कहते हैं? Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand. यहाँ पर गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ हम शहर से दूर सड़क के किनारे पर अपना स्टॉल लगाकर खड़े हैं और हम क्या चाहते हैं कि बस शहर के लोग आएं, हमसे कुछ चीजें खरीदें और हमें पैसे दें और हम उस शहर के पैसे को, वो पैसा जो इतनी प्रोग्रेस का सिंबल है, उस पैसे को हम भी महसूस कर सकें अपने हाथ में पकड़कर। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, और कोशिश कर सकें, कहीं ये जो पैसा है वो हमारी ज़िंदगी को बदल दे। कहीं हो सकता है कि हमारी जो लाइफ़ है वो भी थोड़ी बेटर हो जाए। हमें भी कोई फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, हमारी जो हालत है वो सुधर जाए। ऐसा गाँव के लोग सोचते हैं। And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping for us. और हो सकता है कि इन पैसों से अगर शहर वाले लोग हमसे चीजें खरीदें और हम थोड़े ज्यादा पैसे कमा लें, तो शायद हमारा जो जीवन है वो भी ऐसा हो जाए कि हम शहर जा सकें या हम कभी पिक्चर्स देख सकें, मूवीज देख सकें, जो शहर के लोग जिस लाइफ को एंजॉय करते हैं। और हाँ, वो यहाँ ये भी कहता है दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और जो गवर्नमेंट है, जो सत्ता है, जो लोग सत्ता में हैं, पावर में हैं, वो उस जीवन को कहीं न कहीं हमसे दूर रखते हैं। क्योंकि हम लोग जो गाँव के अंदर यहाँ पर सड़क के किनारे अपना जीवन जी रहे हैं, कोई नहीं आता है हमारे पास हमारा पता लेने, और हमारे जो मिज़रेबल लाइव्स हैं, हमारी जो दयनीय हालत है, उसका दर्द बाँटने भी हमारे पास कोई नहीं आता है। तो वो इस उम्मीद में है कि शायद शहर से कोई लोग आएँगे, उन्हें पैसे देंगे और इन पैसों से वो अपनी लाइफ़ को कुछ बदल सकेंगे। So let's see in the next stanza what he says here. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store. यहाँ पर वो ये कहते हैं कि इट इज़ द न्यूज़, आजकल ये भी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि हो सकता है कि ये जितने भी सारे गाँव के लोग हैं, जो सड़क के किनारों पर गाँव में बसे हैं, गरीब लोग हैं, पिटीफुल किन, पिटीफुल मीन्स द मर्सीफुल, जो दया के योग्य हैं। किन मीन्स उनके जो रिलेटिव्स हैं। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, जो सड़क के किनारे या गाँव में बसे हैं। उनके बारे में आजकल जो खबर है, आर टू बी बॉट आउट, कि उन सबको वहां से उस दयनीय हालत से बाहर निकाला जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस, गांव में एक ही जगह पर, next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore, कि यहाँ गांव से हटाकर उन्हें शहर में
किसी अच्छी जगह पर उन्हें रिलोकेट किया जाएगा, जहाँ पर उन्हें एन्जॉय करने के लिए थिएटर्स भी होंगे और वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स भी होंगे, जहाँ पर वो शॉपिंग कर पाएँगे, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद पाएँगे, जिसकी कि वो सपने देखते रहते हैं। और जहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और वहाँ पर वो लोग इतने बिज़ी हो जाएँगे कि उनके पास अपने लिए सोचने के लिए वक़्त ही नहीं होगा, टाइम ही नहीं होगा। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits। और इन 2 लाइनों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताते हैं कि while greedy good doers, जब ये greedy good doers किन्हें कहते हैं ये? ये गुड डूअर्स कौन होते हैं? जो लोगों का भला करते हैं, जो लोगों के लिए अच्छाई के कुछ काम करते हैं, उनकी तरक्की के लिए कुछ काम करते हैं। They do something to for the poor people to do some progress in their lives. But रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज कॉलिंग देम ग्रीडी गुड डूअर्स। गुड डूअर्स कुछ अच्छा करने वाले, और ग्रीडी कौन है? लालची। तो ये दोनों ही चीजें जो है मैच नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं उन लोगों के लिए जो लालचित हैं, लालची लोग हैं और इन गरीब लोगों का भला करने की बात करते हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, और जो गरीब लोग हैं ये कौन है? ये उन लालची लोगों के लिए शिकार हैं। ये वो शिकार हैं जिनको कि वो इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, जो उनके जीवन पर मंडराते रहते हैं। स्वार्म क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ बीज, इट मे बी अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एंड हियर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ ग्रीडी पीपल। वो लालची लोगों के बारे में यहाँ बात करते हैं जो झुंड के झुंड आते हैं गाँव के अंदर और इन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं अपने लालच के लिए, और इनको वो जो है दे आर आल्सो एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। वो इनको कुछ लालच भी देते हैं, कुछ इनके फ़ायदे की बातें करते हैं कि इनके जीवन में कुछ सुधार लेकर आएँगे, कुछ इनकी लाइफ़ चेंज हो जाएँगी। तो इस तरह से ये लोग उनके लाइफ़ के ऊपर उन्हें मंडराते रहते हैं उन पर, कुछ लालच देते हैं, कुछ फ़ायदे की बातें करते हैं। उनका माइंडसेट जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? देखते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स। और ये जो गाँव के लालची लोग होते हैं, ये इतने टेक्निकल होते हैं अपनी बातों में, इतने बातों के धनी होते हैं कि ये गाँव के भोले-भाले लोगों को बहला देते हैं, उन्हें फुसला लेते हैं और उनके माइंड जो है वॉश कर देते हैं अपनी बातों से। कैसी बातों से? कि वो उन्हें तरह-तरह के ख्वाब दिखाते हैं कि किस तरह से वो उनकी लाइफ़ को चेंज कर देंगे, उनके हालात बदल जाएँगे, उनके लिए कपड़े, उनके लिए मकान, उनके खाने की चीज़ें और पैसा, सब चीज़ों का लालच उन्हें देते हैं और उन्हें उनका माइंड वॉश कर देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। और जहाँ पर वो बताते हैं कि ये जो शहरी लोग हैं, ये जो कुछ लालची लोग हैं, ये उनके जो है उनको बताते हैं कि उनको जीवन कैसे जीना है। दे टीच देम हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। और वो सारा दिन सोते हैं, सारा दिन अपना जो है टाइम और चीज़ों में वेस्ट करते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और दिन में सोने की वजह से क्या होता है कि रात की नींद खराब हो जाती है। द एंशिएंट वे, जो कि हमारा पुराना तरीका है, दिन में काम करना और रात में सोना। लेकिन शहर के लोग गाँव के लोगों का माइंड वॉश कर देते हैं, उन्हें बहला लेते हैं और उन्हें जीने के तरीके उन्हें अपने ढंग से सिखाते हैं और उनके लाइफ को जो है, लाइफ को ही नहीं उनके पूरी जो उनका लाइफ़स्टाइल है उसको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। Let's see in the next stanza here. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं बेकार में ही ऐसी बच्चों जैसी इच्छा रखता हूँ। जो कि जिसके बारे में गरीब लोगों के बारे में। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। अब यहाँ पर वो गरीब लोगों की बात करते हैं जो सड़क के किनारे अपनी शॉप खोलकर बैठे हुए हैं और वो पूरा दिन उस खिड़की के बाहर उदासी से देखते हैं। दे वेट्स दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। और वो सारा दिन वहाँ पर प्रार्थना करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। किसका इंतज़ार करते हैं? वो शहरी लोगों का। द people from the city, they wait for them to come to them, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. So here the poet says that all these people, the poor people, are sitting near the open window and they are waiting for the poor people, for the people to come to them and to give them some money. And they are also waiting and they are also praying for the squeal of brakes.
वो प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर कुछ ब्रेक की आवाज़ आए। जैसे कोई गाड़ी आती है हाईवेज़ पर और वो किसी शॉप को देखकर क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ चाहिए, तो वो ज़ोर से ब्रेक लगाएँगे और वो ज़ोर से ब्रेक की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। उनके कान तरसते हैं पूरा दिन उस आवाज़ को सुनने के लिए। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कार के रुकने की आवाज़। ये एक फीलिंग है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक गरीब व्यक्ति जो है सड़क के किनारे जो अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए बैठा है, किस तरह से वो तरसता है पूरा दिन कि कोई शहर के लोग गाड़ी वाले कोई रुकेंगे, उनसे उनकी कोई फल-सब्जी खरीदेंगे। तो आगे देखते हैं। Of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जब वो वहाँ पर गाड़ी के रुकने की आवाज़ को सुनना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि वहाँ पर कितनी हज़ारों गाड़ियाँ हैं। सेल्फिश कार्स जहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं सेल्फिश पीपल को, वो सेल्फिश पीपल हू आर सिटिंग इन द कार्स एंड हू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द विलेज पीपल। तो गाँव के लोग सोचते हैं कि काश इन हज़ारों गाड़ियों में से कोई एक तो आ जाए, जो उनसे उन किसानों से उनके चीज़ों के, उनके फल और सब्जियों के दाम पूछ ले। एंड वन डिड स्टॉप और कभी कोई एक रुकता भी है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। तो वो सिर्फ़ वहाँ से कुछ घास उगी हुई है, तो उस घास को लेने के लिए रुकते हैं। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड या फिर वो उस जो खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए, टर्न करने के लिए रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज़ बाउंड या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताते हैं कि कभी-कभी जो लोग हैं, शहर के लोग हैं, वहाँ पर सड़क पर इसलिए रुकते हैं क्योंकि वो वहाँ पर सड़क के किनारे जो स्टॉल वाला है या कोई ठेली वाला है, उससे पूछते हैं कि भैया ये रास्ता किस ओर जाता है? ये कहाँ की ओर जाएगा? तो बस इसलिए रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस या फिर कोई रुकते हैं वहां पर ऐसे ही पूछने के लिए शॉप खुली हुई है देखकर पूछने लगते हैं कि आप एक यहाँ पे कोई गैस का गैलन मिलेगा यहाँ गैस कहाँ मिल जाएगी दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को थोड़ा यहाँ पर भी शिकायत है शहर के लोगों से उन्हें नाराजगी है शहर के लोगों से वो पूछते हैं कि क्या उन्हें दिखाई नहीं देता शहर के लोगों को कि यहाँ तो फल और सब्जी बेचने वाला किसान है या फिर अपने बगीचे से ताजे तोड़े हुए फल वो बेच रहा है तो गैस यहाँ पर कहाँ से आई क्यों पूछते हैं वो गैस का गैलन जहाँ पर आकर क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है so we will see in the next stanza what he says here. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. इन लाइन्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि शहर के लोग जो हैं वो गाँव के पैसे के लिए या गाँव की तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए कंट्री मनी, कंट्री यहाँ पे क्या है? विलेज। कंट्री स्केल ऑफ गेन क्या है? द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि नहीं, गाँव में पैसे या गाँव की प्रोग्रेस, वो कभी नहीं देखते हैं कि कभी कोई सिटी पीपल वहाँ पर आते हैं और वो इसकी ज़रूरत समझते हैं। रिक्विज़िट क्या है? द रिक्वायरमेंट। वो इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं समझते। किस चीज़ की? लिफ्ट ऑफ स्पिरिट कि इन गाँव के लोगों को इंस्पायर किया जाए या मोटिवेट किया जाए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इन 2 लाइनों में ये समझाना चाह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि शहर के जो लोग हैं वो गाँव के लोगों को इंस्पायर करने आते हों या मोटिवेट करने आते हों या उन्हें पैसे के बारे में बताते हों या उन्हें ऐसा लगता हो कि इन गाँव के लोगों को भी अच्छा जीवन जीने का हक है। ऐसा नहीं लगता है। शहर के लोग अपनी जो है वो अपनी ही धुन में मस्त हैं। उन्हें कुछ नहीं देखना है कि गाँव के लोगों का जीवन कैसा है, गाँव के लोग क्या जी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। No, no money and no progress can be found. Here the poet Robert Frost wants to tell us there. और so the voice of the country seems to complain. यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये भी बताते हैं कि गांव के लोगों की यही शिकायत है गांव के लोगों की आवाज है ये और उनकी आवाज में यही शिकायत है कि क्यों शहर के लोग उनका पता नहीं लेते क्यों नहीं उन्हें गांव के लोगों का हक है उस जीवन को जीने का जो बाकी लोग एंजॉय करते हैं So he says, I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. इन 2 लाइनों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, I can't help owning the great relief कि मैं उस खुशी को महसूस करना चाहूंगा। It would be to put these people और वो खुशी क्या होगी कि अगर मैं कभी इन गरीब लोगों को
एक ही बार में, एक ही झटके में इनके दुख दर्द से दूर कर दूं, हटा दूं। इनके जो जीवन के दुख हैं उन्हें कम कर दूं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, और अगले दिन जब मैं अपने इस विचार से बाहर हूं। कौन से विचार की बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? उनका ये विचार है कि कभी कोई जो प्रोग्रेसिव पीपल हैं, जो शहर के लोग हैं, वो गांव के किसान के हालात को भी जाने, उनकी प्रॉब्लम्स को जाने। वो जो सारा दिन वहां पर धूप में जलते हैं, तपते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए बैठे हैं, उनके बारे में भी कोई जाने, उनसे भी कोई बात कर ले, उनकी कुछ फल सब्जियां खरीद ले, उन्हें कुछ पैसे दे दे, उन्हें कुछ मदद कर दे। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही सिंपैथेटिकली यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से मिजरेबल लाइफ जीते हैं ये गांव के लोग। सो लेट्स सी इन द लास्ट टू लाइंस व्हाट ही वांट्स टू से हियर। I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Very beautiful written, these two lines by Robert Frost, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये अ, अपनी इच्छा बताते हैं कि वो कितनी खुशी होगी उन्हें कि अगर कोई उनके पास आए और उन्हें इस विचार से, उन्हें इस दर्द से बाहर निकाल ले। वो जो पेन महसूस करते हैं गांव के लोगों के लिए, उस दर्द से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोई बाहर निकाल ले तो उन्हें बहुत खुशी होगी। तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, he was having a deep concern for the rural people, for the village people who are having their stalls, who are having their small shops at the edge of the roads, and who are waiting for the city people to come to buy their things and to give them some money so that they should be able to live their lives comfortably here. So this was the explanation of the poem, and I think that all of you understand it. Now we will see some of the other things in the poem. First of all, I want to tell you the rhyme scheme of the poem here. The rhyme scheme has been used here. It is A, B, B, and C, C. Next, we come to the literary terms. So we will see the literary terms here. Yes, we will see here. So literary terms we can see in this stanza, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Third line you can see and ask for some city money. And ask we can see the first letter is repeated here, so it is alliteration here. Then we can see the next line starting two words to try. Again T consonant, the first letter is repeated here. Again alliteration here. Then we see in the next stanza, one, two, three, four, fifth line you can see, while greedy good doers, again you can see letter G has been repeated here in greedy good, so alliteration again has been used here. And greedy good doers, because two different opinions, two different attitudes have been used here. Good doers can't be greedy, but here it has been used. So the literary device oxymoron has been used here, we can see. And again, I want to tell you one more thing in the very first stanza, we can see here. Yes. Third line, you can see a roadside stand that too pathetically pled. Pathetically pled here, we can see that first letter has been used. Again, alliteration has been used here. Letter P is repeated. And one more thing I want to tell you here, that the poet Robert Frost has said here that a roadside stand that too pathetically pled means that roadside stand is miserably pleading here, making a request. So we can see personification here, where Robert Frost has personified the roadside stand. The shop has been personified here. So these were the literary devices I can tell you here in the poem. So here we complete the poem, and we see, my dear children, that this is really a beautiful poem in which we see that we feel that the poor people having their roadside small shops or stands go through hardships of life, but they are also very hopeful for somebody to come and give them some money to live, to eat, and to make their lives more comfortable. So this was all about this poem. I hope you all understand the explanation, theme, and idea, literary terms told by me here, my dear children. And
And also, my viewers, keep watching my videos. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. I'll be waiting for your comments there. And don't forget to share and subscribe my channel. Soon I'll upload a new video. Till then, take care. Goodbye.